महादेव 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं नारायणं वन्दे। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति।
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। भाव भावेश्वर महादेव। विद्यानंदेश्वर महादेव। भगवती पीतांबरा मात। ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज। कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद्भागवत भगवान की। पवन सुत श्री हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हरि बोल हरि बोल। આજે ઘણા ટાઈમ પછી આપણા ક્ષેત્રમાં શ્રીમદ ભાગવતી કથા કરવામાં આવી રહી છે મારા દ્વારા. એમ તો ઘણી ભાગવતો ઘણી જગ્યા ચાલતી જ હોય છે અને આજકાલ તો બાઢ જ આવેલી છે, રેલ આવેલી છે કથાકારોની, ખૂબ ચાલ્યા કરે છે. સારી વાત છે, ભગવાનનું નામ લેવામાં આવે છે. રજત જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે અહીંયા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ ખૂબ જ સારું આયોજન છે. સનાતન સંસ્કૃતિ માટે પ્રેરણાસ્પદ રહેશે. આપણા આદિવાસી સમાજને પણ એ પ્રેરણા આપશે કે એવા કાર્યક્રમો થવા જ જોઈએ, કરવા જ જોઈએ. લોકો પોતાના લગ્નની રજત જયંતિ મનાવતા હોય, ઉજવતા હોય, પોતાના 25 વર્ષ થઈ ગયા હોય તો એનો બી ઉજવતા હોય, પણ ભગવાનનો ઉજવવાનો કોઈને જ લાભ મળે છે.
આપણે ભાવ ભાવેશ્વરનું ઉજવવાનું છે. એ પહેલાં તો વિદ્યાનંદેશ્વર મહાદેવ આવી ગયા. ભાવ ભાવેશ્વરનો તો 10મી એપ્રિલે પ્રાકટ્ય દિવસ આપણે ઉજવવાનો છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવવાનો છે, પાટોત્સવ. પણ આજે ઝવેરભાઈ દ્વારા એમનું સંસ્મરણ આવશ્યક છે. વરુમાળમાં જ્યારે હું રહેવા માટે આવ્યો, મારા મનમાં એક જ વાત હતી, હું કંઈ પણ અહીંયા કરીશ એનો લાભ આદિવાસીને મળવું જોઈએ. ચાહે સત્સંગ હોય, અધ્યાત્મનું ચિંતન હોય, ચાહે ભૌતિક ચિંતન હોય, ચાહે આર્થિક ચિંતન હોય. જ્યારે મકાન બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું તો ઝવેરભાઈને મેં બોલાવ્યા. પહેલો મકાન જે કૈવલ્ય કુટીર, જેમાં હું વર્ષો સુધી રહ્યો છું, એ ઝવેરભાઈ દ્વારા જ કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. આનંદની વાત એ છે કે મારા પાસેથી જેટલા પૈસા એમને કમાણા એ ગુરુજીને જ પાછા સોંપી દીધા, વિદ્યાનંદેશ્વર મહાદેવ સ્થાપિત કરીને. પચીસ વર્ષ પહેલાની વાત છે ને આ તો. ત્યારે પૈસાની કિંમત વધારે હતી, ડોલરના ભાવ બી ઓછા હતા. તે જમાનામાં મને ખ્યાલ છે 10 થી 12 લાખ રૂપિયા મારા મકાનને બનાવવા માટે એમને મારા પાસેથી લીધા હતા. પણ મને જરાય ખબર નહીં પડવા દીધી. આ મંદિર બની ગયો, ઢાબો નાખી દીધું, હોલ બનાવી દીધું. પછી એક દિવસ મને કહે છે કે પહેલે આવે ને કઈ અમાસ શ્રાવણમાં, અરે દિવાસો તમે કેમ ભૂલી જાઓ છો યારો? હા, તો દિવાસા ઉપર મને કહે કે જમવા માટે આવવાનું છે. તો અમે આવ્યા तो जोईने एकदम धक रही है. मैंने कह रहे झवेर ये क्या किया, इतना बड़ा हॉल बना दिया तुमने यहाँ एक छोटे से गांव में, और ऐसा मंदिर बना दिया. बोला तमे भी तो बरूमाल में बनाया, तो हूँ केम नहीं बनाऊँ. सारी बात है, खुशीनी बात है. પછી મહાદેવની પ્રતિષ્ઠાની વાત આવી. મહાદેવની મૂર્તિ મેં આપી. પછી મેં કીધું એનું નામકરણ કરવાનું છે. તો નહીં, કાંઈ કરવાનું નથી, અમે વિચારી લીધેલું છે. મને કહે તું શું વિચારી લીધું? તો મને કહે કે હું વિદ્યાનંદેશ્વર મહાદેવ નામ રાખવાનો છું. મેં કહ્યું કે યાર મારાથી પૂછ્યું બી નથી, તે એને નક્કી બી કરી લીધું. એટલે એમાં હું પૂછવાનું, તમે તમારા ગુરુજીના નામે અખંડેશ્વર મહાદેવ રાખ્યું કે નહીં? તો હું મારા ગુરુજીના નામે નહીં રાખી શકું? હાજર જવાબ, તત્કાલ. પછી મારે તો બોલવા પણ કાંઈ રહેતું જ નથી ને. અનન્ય ભક્તિ હતી, અનન્ય ભક્તિ, અનન્ય સમર્પણનો ભાવ હતો. અને આજે પણ હું માનું છું, આપણા આદિવાસી વિસ્તારના ઘણા બધા ગામોમાં મારા ગુરુદેવનું નિર્વાણ મહોત્સવ પણ ઉજવવામાં આવ્યું છે. માનતા બી છે લોકો, મને બી ખૂબ જ પ્યાર કરે છે. પણ આ કહી શકું છું કે કાંગમી ગામમાં હજુ પણ ભક્તોની સંખ્યા ઓછી નથી થઈ. હજુ પણ અહીંયા સનાતન ધર્મને માનનાવાળા લોકો ઓછા નથી.
અને એનું શ્રેય તો જાય છે સદગુરુદેવને જ, બ્રહ્મલીન સદગુરુદેવને જ. જે જમાનામાં કોઈ સાધનો નહોતા ત્યારે આવીને અહીંયા ધર્મનો પ્રચાર કર્યો, બધાને સારા રાસ્તા ઉપર, સાચા રાસ્તા ઉપર લાવ્યા. પછી તો તમે બધા, તમારામાંથી બી લોકો તૈયાર થઈ ગયા ને, બહુ સારા સારા. આપણે ત્યાં એક ચમારભાઈ હતા, એ તો બહુ જ ખૂબ જ સારા ભજનો ગાતા વેદાંતના. જીવણભાઈ છે ને હજુ તો, એ બધા જૂના ભક્તો, અને એ પરંપરાનો નિર્વાહ કરી રહ્યા છે અમારા મહેશભાઈ. આદિવાસી સમાજમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો ધ્વજ હાથમાં લઈને એ બી ઘેરે ઘેરે ફરી રહ્યા છે. અશ્વિન પણ એમનું અનુકરણ કરી રહ્યો છે. એક વાત તો યાદ રાખજો, આ ભાગવતની કથા સાંભળવાનો અધિકાર તમને, મને, બધાને જ. આપણે જે ચર્ચા અહીંયા કરવા માટે બેસેલા છે એની પાછળ એકમાત્ર કારણ છે, અગર જે સનાતન ધર્મ ટક્યું ન હોત તો આપ અને હું બધા જ બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારીને ભગવાન બુદ્ધના સામે જઈને બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામી, સંગમ શરણમ ગચ્છામી કરતા હોત. આવ્યા ભગવાન શંકરાચાર્યે, બુદ્ધને અવતાર ગણવામાં આવ્યું છે, આપણે ત્યાં અવતાર છે. અહિંસાના પૂજારી હતા. ગાંધીએ પણ, મહાત્મા ગાંધીજીએ પણ એમનાથી જ આ પ્રેરણા લીધી અહિંસાવાદની, અહિંસા પરમો ધર્મ. જૈન દર્શન પણ પછી આવ્યો. પરંતુ એમના અનુયાયીઓએ વેદોની નિંદા શરૂ કરી, વેદ વિરુદ્ધ આચરણ કરવા લાગ્યા. પરિણામ સ્વરૂપ સનાતન ધર્મના વિરોધી થઈ ગયા. જેમ વર્તમાનમાં એક સ્થિતિ આવી ગઈ છે કે નરેન્દ્ર મોદીનો વિરોધ કરતા કરતા લોકો રાષ્ટ્રનો વિરોધ કરવા લાગી ગયા છે. એવી સ્થિતિ આવી ગઈ છે. 2-4 દિવસ અગાઉ જ ઇન્ડિયા સ્ટેટ આ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો. તમે લોકો ટીવી જોતા હશો તો તમને ખબર હશે જ. જે રાષ્ટ્ર છે આપણું એને સ્ટેટ્સની સંખ્યામાં ગણાવી દીધું, ઇન્ડિયા સ્ટેટ. વ્યક્તિના વિરોધમાં તમે જાઓ અને કાંઈ બોલો એક વાત જુદી, પણ રાષ્ટ્રના વિરોધમાં તો ન બોલો. એવી સ્થિતિ બુદ્ધના અનુયાયીઓની થઈ ગઈ હતી. પરિણામ સ્વરૂપ બૌદ્ધ ધર્મ ભારત વર્ષમાંથી કાઢી જ નાખવામાં આવ્યું. एक फकीर आया और बहुत छोटी उम्र के अंदर काम करके चले गया, जिनका नाम था आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य. એટલે આજે આપણે બધા અહીંયા બેસેલા છીએ અને હિન્દુ ધર્મને, સનાતન ધર્મને ઓળખી રહ્યા છે. और फिर शंकराचार्य की परंपरा में ही आदिवासी समाज पर कृपा करवा माटे एक और फकीर आव्या, जेमनु नाम छे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज. एमने भी सनातननी ज्योति अपना समाज में स्थापित करी અને આજે આ બધા જ લોકો જ્યારે હમણાં આવી રહ્યા હતા ને આપણે પ્રોસેશનમાં, તો એક જ વિચાર મનમાં કરી રહ્યો હતો, આ ભક્તોને હું શું કહું, આટલું બધું વાલ કરે છે મને, આટલું બધું ચાહે છે,
હૃદયથી તમને બધાને હું આશીર્વાદ આપું છું દીકરાઓ, હૃદય. અને મન જ મનમાં વિચાર કરી રહ્યો હતો, મને આ વિસ્તાર છોડીને જવું નથી, અને પાછો બી આવવું પડે જન્મ લઈને તો હું આવવા તૈયાર છું ને અહીંયા કામ કરવા તૈયાર. હું મુક્તિ મેળવવા માંગતો નથી. હાલાકી ભાગવતની કથાથી તો મુક્તિ મળે જ મળે, પણ હું નથી લેવામાં. હું કહી દઈશ ત્યાં કે મને એક્સટેન્શન આપો. હા, મારે આદિવાસી સમાજમાં હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે. એટલે દીકરાઓ, ભગવાનને પામવા માટે પણ સદગુરુની આવશ્યકતા છે જ. श्रीमद् भागवत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन वहां भी सदगुरु आके बैठता है. मुक्ति का मार्ग सदगुरु के द्वारा ही प्रशस्त होता है. इसलिए एक सामान्य दुआ है, परिचय बिना प्रतीति नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, जल बिना नौका न चले, गुरु बिन होए न ज्ञान. તમે નિશાળે જાઓ છો ભણવા માટે, નાના હતા ત્યારે ગયા જ હશો. ત્યાં પણ કોઈ ગુરુ તો આવ્યા ને. અંગ્રેજીમાં ટીચર કહી દો, હિન્દીમાં અધ્યાપક કહી દો, આપણી વૈદિક ભાષામાં ગુરુ કહી દો, અને તમને શીખવાડવામાં આવ્યું ક ખ ગ ઘ. હવે તમે કહો કે આ ક નથી બોલવાનું, મારે તો એને ભય બોલવાનું છે, તો તમે શીખી શકો છો? તમને અક્ષર જ્ઞાન થાય? નહીં થાય ને. તો ત્યાં ગુરુના મુખને જોઈને એમને એ જે આપણને શીખવાડી રહ્યા છે એ શબ્દોને આપણે દોહરાવીએ, બોલીએ, ઉચ્ચારણ કરીએ તો જ આપણને શબ્દ જ્ઞાન થાય. જેમ હું તમને બોલાવું, શિવ શિવ શંકર હર હર મહાદેવ, બોલો. बोला ने, तो ये बोला इसका मतलब गुरु ने आपको बुलवाया और आपने बोला. तो इससे बोध क्या हो गया? ये भगवान शंकर का नाम संकीर्तन है, इसको करने से हमको पुण्य की प्राप्ति होगी. गुरु ने ये बात समझाई तो आप सभी बैठ कर के फिर अपने मंदिर में शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव. एक बीजी बात और सामलो, महात्मा सिवाय તમને ભલે ને કોઈ કેટલી સારી કથાઓ સંભળાવીને જતા હશે, પણ તમારા દિલ ઉપર જે પ્રભાવ પડે છે ને એ ગ્રહસ્થ વક્તાનો નથી પડતો, મહાત્માનો જ પડે છે. એ સાચી વાત કે ખોટી વાત? હું મહાત્મા છું એટલે તમે બોલો મને ખુશ કરવા માટે, એવું નથી. પણ આ એકદમ હકીકત છે. જ્યારે હું વારાણસીમાં ભણતો હતો, મારા વ્યાકરણના ગુરુજી હતા, વ્યાકરણ શાસ્ત્રના ભણાવવાવાળા પંડિત રામ યત્ન ત્રિપાઠી. બહુ જ સારા વિદ્વાન, બહુ જ સારા. અને તમને લોકોને કોઈકને કદાચ યાદ હોય, તે જમાનામાં ગુલાબભાઈ, જેમ દીપકભાઈ કાર્ય કરી રહ્યા છે, આપણો હમણાં પ્રચાર મંત્રી હતા, તે સમયની હું વાત કરું છું. એમનું મેં બહુમાન પણ કર્યું હતું. જ્યારે બલરામ જાખડ આપણે ત્યાં આવ્યા હતા, કિરણ બેદીનું કર્યું હતું,
ત્યારે જ એમનું પણ રામયત્ન શુક્લજીનું પણ મેં સન્માન કર્યું હતું. બહુ જ મોટા વિદ્વાન. હું એક દિન એમની ક્લાસની બહારથી જઈ રહ્યો હતો. મને ચાહતા બહુ હતા, બહુ પ્રેમ કરતા હતા. तो मैंने जोर से बूम पाड़ी, ब्रह्मचारी जी, उस समय संन्यास नहीं लिया था मैंने, ब्रह्मचारी जी इधर आइए. तो हम चले गए, नमस्कार किया, बैठ गए. देखिए मैं वेदांत पढ़ा रहा हूँ और आप भी बैठिए, सुनिए, देखिए हम वेदांत भी कैसा पढ़ाते हैं. व्याकरण न्याय तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन वेदांत भी पढ़ाते हैं. હું બેસી ગયો. ગીતા ભાષ્ય ભણાવી રહ્યા હતા, શાંકર ભાષ્ય ગીતાનું, અને ત્યાંથી જ શરૂ થાય છે. અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતા સૂન ગતા શુંસ્ય નાનુશોચંતિ પંડિતા. અહીંયાથી જ આચાર્ય શંકર, અમારા ભગવાન ભાષ્યકાર, એમને ભાષ્ય લખ્યું અને એ જ ભણાવી રહ્યા હતા. હું બી બેસી ગયો, સારું લાગ્યું મને. પણ તે જમાનામાં એક એક્સપ્રેસ ડિલિવરી કરીને લેટર ચાલતા હતા. અંતરદેશીય પત્ર ઉપર લાલ કલરનું એક ટિકિટ ચોંટાડી દેવામાં આવતું, 13 પૈસાનું. મને બધી યાદ છે. એક્સપ્રેસ ડિલિવરી. એ પત્ર આવ્યો અને પંડિતજીને આપવામાં આવ્યું. એમનું જ હતું એટલે એમને આપ્યું. તો એમને પત્ર ફાડીને ખોલીને જોયું અને વાંચવા લાગ્યા. તો વાંચતા વાંચતા જ મેં જોયું કે કંઈક अशुभ समाचार लागे छे. पंडित जी का मुंह थोड़ा उतर गया था. तो मैंने कहा गुरुजी क्या हो गया, कुछ गड़बड़ाया क्या? हाँ, घर से पत्र आया है. मैंने कहा अच्छी बात है. तो क्या लिखा है? बोला घर वाली बहुत बीमार है और बुला रही है कि आप आ जाइए जल्दी, गांव में आ जाइए. मैं बहुत मुंह फटता पहले से ही. मैंने कहा गुरुजी अभी तो आप पढ़ा रहे थे अशोचानन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, फिर आपको क्यों करके दुख हो रहा है? आप अभी तो हमको सिखा रहे हो सबको, हे अर्जुन तू प्रज्ञावादी बन रहा है और अशोचनीय पदार्थ का शोक कर रहा है. तो संसार में तो ये सब चलने ही वाला है पंडित जी. तो उनके मुंह से निकल गया कि मैं आपकी तरह से बाबा जी नहीं हूँ. अब मैंने घर छोड़ा, तब फिर मेरे भी मुंह से निकल गया कि इसीलिए मैं आपसे वेदांत पढ़ने नहीं आता हूँ. हमने वेदांत महात्माओं से ही पढ़ा है, क्योंकि महात्मा जो बोल रहा होता है ना उस समय, वो उस रंग में रंगा हुआ होता है. उसके मन में वो दृढ़तम वैराग्य हुआ ही करता है. और ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भी बेटा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों का उद्बोधक है, इनको जगाने वाला है. इसलिए श्रीमद् भागवत ऐसे वक्ता से सुनिए जो विरक्त हो, वैराग्यवान अधिकारी हो. उनके द्वारा आपको कुछ भी सुनाया जाएगा, निश्चित रूप से आपके हृदय पे प्रभाव भी पड़ेगा, प्रकाश भी होगा. श्रीमद् भागवत में सबसे पहले महात्म्य की चर्चा किया करते हैं, और महात्म्य ज्ञान आवश्यक होता है. अगर महात्म्य का ज्ञान न हो तो फिर श्रोता की श्रद्धा नहीं होती है, श्रवणेच्छा प्रबल नहीं होती है. इसलिए महात्म्य सुनाया जाता है. अभी 2 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ. मुझे एक इंजेक्शन लेना था, उसका
क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल ही गया नाम, वैक्सीनेशन। तो मैं मेरे ड्राइवर से कहा, संदीप से, कि संदीप चलो वलसाड़ चल के आते हैं, कल्पेश जोशी को दिखा देंगे, इंजेक्शन आया है, इसको कैसे लिया जाए, और लेके भी आ जाएंगे उनसे ही। तो बोला ठीक है गुरुजी, लेकिन एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलो। हाथी खाना ऊपर एक डॉक्टर छे, अंकित भाई दसुंदी, ये बहुत सारा डॉक्टर छे। एक बार तो मैं चालू तो करा, मैं उसके कहने से वहाँ चले गया। वो डॉक्टर उठ के खड़ा हुआ, जूता निकाला, फिर मेरे को प्रणाम किया और इतना खुश हुआ कि आप मेरी क्लिनिक तक आए। मैंने कहा तुम्हारी दक्षिणा क्या? बोला आप आ गए, यही दक्षिणा है मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इंजेक्शन उसने देखा हम कुछ गलत कर रहे थे, हम बोले कि ये वाला लेना है। बोला नहीं आप ठहरिए, मैं देख लेता हूँ। फिर उसमें जो तारीखें लिखी थी उस हिसाब से उन इंजेक्शनों को उसने जोड़ दिया। अब ये 1 महीने बाद लेना, ये 1 महीने बाद फिर लेना, 3 महीना लेना था, 1 महीने में 1। तो हमने कहा ठीक है दे दो आप। तो उसने वो 1 इंजेक्शन दे दिया। दी बेस्ट डॉक्टर। मैंने उससे कहा कभी मैं नहीं आ सका तुम्हारी क्लिनिक और तुम्हें बुलाऊं तो तुम आओगे, मेरा सौभाग्य होगा, आप मुझे सेवा का अवसर देंगे। उस डॉक्टर को तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसके लिए इतना कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव बोल रहा है ये कि सचमुच बहुत ही अच्छा लड़का। और कहने लगा गुरुजी मेरे को पैसे की नहीं पड़ी है, मेरे यहाँ आया हुआ बीमार ठीक होके जाना चाहिए, पैसा सेकेंडरी है, पहले तो आने वाला ठीक होके जाना चाहिए। और मेरे पास तो जंगल के लोग आते हैं, कहते हैं आटला अच्छे नथी वधारे, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है। वो फिर 4 महीने बाद भी आके देखे जाएगा मेरे को। मैं बोलता भी हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है मत दो, नहीं डॉक्टर देंगे। इस तरह की ख्याति को अगर कोई सुनता है तो उस डॉक्टर से मिलने का मन होगा कि नहीं। और मेरे को ये संदीप गुरु बन गया और वहाँ ले गया, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति के साथ में संपर्क करवा दिया, मेरा भी मन उसके साथ लग गया। किसने किया ये काम? महात्मे ने। किसने किया? महात्मे ने। उसने अच्छा व्यवहार किया लोगों के साथ, तो उसकी ख्याति अपने आप लोगों में बढ़ने लग गई। तो महात्म्य ज्ञान जो होता है ना बेटा, वो किसी भी कार्य के लिए प्रेरक बनता है। आज स्वामी जी बहुत सारा वक्ता छे, बहुत सारू बोले छे, અમારા ગુરુજી બહુ સારી ભાગવત સંભળાવે છે, આ તમે મહાત્મ્ય કરી રહ્યા છો મારું, આ મહાત્મ્ય જ્ઞાન બીજા બધાને પ્રેરણા આપે છે। એવી જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમાં બી સૌથી પહેલાં મહાત્મ્ય લખેલું છે। भाई भगवान तो भगवान है, उनके महत्व को तुम नहीं मानोगे तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम मानो, तुम समझो कि भगवान हैं और भगवान में इतने गुण हैं, उन गुणों का श्रवण करने से तुम्हारे मानस में उनके प्रति आकर्षण पैदा हो, इसके लिए महात्म्य का वर्णन किया जाता है, आवश्यक होता है। इस महात्म्य का भी मंगलाचरण है। बोलो कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। एक ही कृष्ण का नाम है और इसमें
4 बार ये उच्चारण हुआ है और चारों के चारों विभिन्न है, चारों अलग, और चारों अलग होके भी एक। जैसे देखो, कृष्णम नारायणम वंदे, बोलो। नारायण ही कृष्ण होके आए हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। तो एक कृष्ण क्या हो गए? नारायण। दूसरे कृष्ण, कृष्णम वंदे व्रज प्रियम, बोलो। अब व्रज प्रिय कृष्ण कौन सा आया है? यशोदानंदन, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण। और व्रजवासी तो इतना प्रेम करते हैं बाबा, पूछो नहीं बात। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारा कृष्ण इस वृंदावन की सीमा को, 84 कोस की इस परिक्रमा की भूमि को छोड़ करके और कहीं गया है। वो तो मथुरा को भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं नहीं, हमारा कृष्ण तो यहीं है, हम ब्रजवासियों का प्रिय कृष्ण हमारे पास है। हाँ, तुम बोल सकते हो ना, हमारा गुरुजी तो हमारा पास ही छे, बोलो बोली सको कि नहीं? छू कि नहीं? બધું ઐશ્વર્ય છોડીને નાસિકનો આવ્યો કે નહીં? તમારા માટે તમારા પાસે છું, તમે કહી શકો છો અમારા ગુરુજી તો हमारा पास। तो ब्रजवासी नहीं कह सके कि हमारो कृष्ण हमारा पास है, बोलो, कह सके? इसलिए कृष्णम वंदे व्रज प्रियम, વૃંદાવનવાસીઓના અત્યંત પ્રિય જે કૃષ્ણ છે એમને અમે વંદન કરીએ છીએ. ત્રીજા, કૃષ્ણમ દ્વૈપાયનમ વંદે. એ વળી ત્રીજા કૃષ્ણ ક્યાંથી આવ્યા? બોલા એ દ્વૈપાયન છે. દ્વૈપાયન એટલે વેદવ્યાસ. એમનું બી એક નામ છે કૃષ્ણ દ્વૈપાયન. શું નામ છે? કૃષ્ણ દ્વૈપાયન. દ્વૈપાયન નામ શા માટે પડેલું? એમનું જે અવતાર થયો છે, જન્મ થયો છે ને, એક દ્વીપમાં થયું હતું. દ્વીપ સમજો છો ને? દરિયામાં યા નદીમાં વચ્ચે ટાપુ, આ ટાપુ સમજી લો, એને સંસ્કૃતમાં દ્વીપ કહેવામાં આવે. द्वीप में पैदा थया, द्वीपे भवती, द्वीप में जन्म लिया, द्वीप में पैदा हुए, इसलिए द्वैपायनम. द्वीप एव अयनम आश्रयो यस्य सद्वैपायन है. द्वीप में ज आवीने एमनु प्राकट्य थयो, ए ज आश्रय स्थल बनी गयो, एटले एमनु नाम द्वैपायन पड्યું. पण आखू नाम है कृष्ण द्वैपायन. शू नाम? इसलिए कह रहे हैं तीसरे कृष्ण द्वैपायन है, भगवान वेदव्यास हैं, उनको भी वंदे, हम उनको भी प्रणाम करते हैं. भागवत किसने लिखा? बोलो. कृष्ण द्वैपायन बोलो. कोने लख्यू? कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास. અને ચોથા છે કૃષ્ણમ વંદે, બોલો, પૃથાસુતમ. આ વળી કયા કૃષ્ણ આવ્યા? આ બી કૃષ્ણ છે, એ અર્જુન છે. અર્જુનનું પણ એક નામ કૃષ્ણ છે. श्रीमद् भागवत में ज आवशे एक श्लोक एवं, कृष्णम कृष्ण सख, कृष्णम अर्जुनम कृष्ण सख. कृष्ण का सखा अर्जुन, वो भी कृष्ण है. और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए नर ऋषि का अवतार है. अर्जुन किसका अवतार है? नर ऋषि का. और बद्रिकाश्रम में कौन बैठे हुए हैं? नर और नारायण. तो नर और नारायण की जोड़ी है.
जो नारायण है वही नर है, जो नर है वही। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला करता हूँ, इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे काम करो कि तुम नर से नारायण बन जाओ। इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे सत्कर्म करो कि तुम नर से क्या बनो? नारायण। और अगर गलत काम करोगे तो नर से क्या बन जाओगे? नारकी। क्या बनोगे? नारकी का मतलब क्या होता है? नरक में जाने वाले लोग, उनको नारकी कहते हैं। फिर तुम माता हो, तुम भी नर हो, और अच्छे काम करोगी तो जानती हो तुम क्या बन जाओगी? नारायणी। क्या बनोगी? नारायणी। नारायणी नमोस्तुते। हे जगदम्बाओ, तुम भी अच्छे कर्म करोगी, अच्छे रास्ते पे चलोगी तो तुम क्या बन जाओगी? नारायणी। और नहीं अगर अच्छे कर्म किए, अच्छे रास्ते पे चले तो तुम भी क्या बन जाओगी? नारकी। क्या बन जाओगी? नारकी। तो नर ऋषि एज अर्जुन, अर्जुन एज कृष्ण। એટલે कृष्णम वंदे पृथासुतम। हम उन अर्जुन को भी जो कृष्ण के ही स्वरूप हैं प्रणाम करते हैं। और ये नमस्कार करने के पश्चात श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में ही उद्धृत किया जाता है, सच्चिदानंद रूपाय, बोलो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। भगवान तीन स्वरूपों में प्रसिद्ध हैं, सतरूप, चितरूप और आनंद रूप। इसीलिए इन तीनों को जोड़ देने से क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। तुम्हारे में भी ये तीनों रूप बैठे हुए हैं। सत यानी अस्तित्व। તમને કોઈ ફોન આવે, હેલો દીપકભાઈ છો, તો તમે હું કહેશો કે હું નથી? બોલો, શું કહેશો? છે। सत अस्तित्व है ना हमारा, तुम हो। भाई तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, पथरा छो, जड़ छो ना। जड़ केम थी जवाय? चैतन्य, चित, सत पण छो, चित पण छो। નથી તમારા પાસે તો એક, જેનું નામ છે આનંદ। આ અમારા મહાત્માઓના પાસે છે। विद्यानंद, गोपालानंद, शिवा, ये सब आनंद रूप मूर्तियाँ बैठी है ना। અમે આનંદમાં છીએ। એ આનંદ મેળવવા માટે તમે અમારા પાસે ભાગવત સાંભળવા આવ્યા છો कि તમે પણ आनंद रूप बनी जाओ। तो मैं बोलता भी हूँ अपने भक्तों को, आओ महेश आनंद, आओ दीपकानंद। आनंद लगा देता हूँ कि जिससे तुम अपने उस आनंद स्वरूप को ओळखो, समझो। तो देखो, परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और संसार में कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दुखी होके जीना चाहता हो। बोलो, हाथ खड़ा करो। दुखी रहोगे? अभी बता दूंगा कि हो जाओगे। बोलो, नहीं ना। अच्छा, आनंद में रहोगे? आनंद में रहना चाहते हो? जोर से बोलो। देखो, जो बोलेगा वो अभी आनंद में आ जाएगा। हाँ, नहीं बोलेगा तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। बोलो, आनंद में रहना चाहते हो?
माताओं તમે હા કોઈ પણ સંસારનો માનવી દુખી રહેવા માંગતો કારણ કે અમારો સ્વરૂપ જ આનંદ છે। हमारा दीपक भाई एक भजन गाते हैं बढ़िया, याद हो तो सुनाओ। मेरा सतचित आनंद रूप बोलो। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। वेद वचन का मैं हूँ सृष्टा। वेद वचन का मैं हूँ सृष्टा। मन वाणी का मैं। उपनिषद प्रतिपाद्य सत तत्व है। गीता इत्यादि शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य चित तत्व है। या यूं समझ लो उपनिषद भगवान की सतवाणी है और गीता चिदवाणी है, लेकिन श्रीमद् भागवत आनंद वाणी है। ये आनंद रूप है, आनंद रूप है। इसमें आनंद का रस भरा हुआ, आनंद की अनुभूति भरी हुई है। इसीलिए भागवत के लिए आएगा आगे जब अपना प्रथम स्कंद शुरू होगा, पीबत भागवतम रसमालयम। और ये जो रस है ये श्री कृष्णाख्य है, परमात्मा श्री कृष्ण ही वो रस है। और उस रस का पान करके आप आनंद रूप बन सकते हैं और तीनों आप में आ सकते हैं। सत तो है ही है, चित भी है और आनंद भी हो सकता है आप अपने स्वरूप को अगर पहचान लें तो। जैसे अभी अभी आपने भजन में सुना ना, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप। इस चीज़ की अनुभूति हो जाए, खाली जबानी जमा खर्च नहीं रहे, अनुभूति हो जाए तो आपको उसमें आनंद का अनुभव होगा होगा और होगा ही होगा। फिर आप भी आनंद स्वरूप होंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन तीनों का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तीनों का अभिन्न बोलो, निमित्त उपादान कारण। हाँ, अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अर्थ मैं समझा देता हूं तुमको। कुमार ने घड़ा बनाया, उसने भी रचना किया, इसीलिए उसको भी प्रजापति बोलते हैं लोग। कुमार को भी प्रजापति बोलते हैं। वो भी पात्र बनाता है, घड़ा बनाता है। लेकिन उस घड़ा को बनाने के लिए उसको कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? पहले मिट्टी इकट्ठा करना पड़ेगा अच्छी, फिर वो मिट्टी को अपने यहाँ तक लाने के लिए गधेड़ा रखना पड़ेगा। गधा भी तो कारण है उसमें। कुम्हार के यहाँ गधा क्यों होता है? वो मिट्टी ढोके और लेके आता है। फिर पानी भी कारण है, फिर एक चक्र होता है, वो भी घुमाया जाता है तभी वो घड़ा बनता है। फिर उसको घुमाने के लिए एक डंडा भी कारण होता है, वो डंडा पकड़ के घुमाता है तभी घूमता है चक्र।
एक घड़े को बनने के लिए कितने सारे कारण आ गए। और वो बोलो कुम्हार से अलग है कि नहीं है ना। कुम्हार अलग और मिट्टी अलग, चक्र अलग, दंड अलग। अच्छा, और वो जब बन के घड़ा तैयार हो जाता है तो काटने के लिए एक धागा होता है, ऐसे नीचे से धागा पकड़ के खींचता है। मेरा घर कुम्हार के बाजू में था इसलिए मुझे मालूम है सब। तो उसको नीचे से काटता है तो कट के हाथ में आ जाता है। लेकिन कुम्हार जुदा और ये सारे पदार्थ जुदा। अच्छा जी, चलो घड़ा बन गया, बनाने वाला कुम्हार भी है, वो निमित्त कारण बन गया। अब यहाँ के ऊपर उपादान है मिट्टी। मिट्टी न हो तो घड़ा बने नहीं ना। आप कहोगे मिट्टी और कुम्हार न हो तो भी घड़ा, बात तो ठीक है, कहाँ से बनेगा, कुम्हार भी चाहिए। लेकिन ये सब के सब पदार्थ अलग अलग हैं। किंतु बेटा हो, आपको पैदा करने में बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही, मतलब उपादान कारण भी वही। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कहाँ से प्रकट हुए? परमात्मा के संकल्प से ही हुए ना, भगवान ने पैदा किया ना। और आप में, मुझ में, सब में 5 तत्व हैं कि नहीं? तो बनाने वाला परमात्मा, संकल्प करने वाला परमात्मा और बनने वाला ये जो जीवात्मा है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण बोला है। विश्व को उत्पन्न करने में, स्थित करने में और फिर संहार लीला करने में एकमात्र परमात्मा ही कारण है, और वो अकेला ही कारण है। ऐसे उस परमात्मा को हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर कहते हैं प्रणाम करने से फायदा क्या होगा? मतलब बहुत बड़ा फायदा है। तापत्रय विनाशाय आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के संताप होते हैं। ऐसे संताप तो बहुत हैं, सब जल रहे हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। कोई बाप के वियोग में, कोई माँ के वियोग में, कोई बीवी के वियोग में, कोई पैसे के वियोग में, कोई रोग से पीड़ित होकर के, किसी न किसी तरह से जलन सब में है। मेरे को एक हाथ खड़ा करके बता दो कि मेरे को कोई जात का दुख नहीं है, बता दो कोई एक मन से कि मने कोई जातनो दुख छेज नहीं એવું તમારામાંથી એક બી ઊભો થાય છે? હાથ ઓછો થાય નથી થતો। क्यों? कुछ न कुछ लफड़ा। अच्छा, एक शांत होता है, थोड़ा दूसरा खड़ा हो जाता है। हालत भी ऐसी खराब। घણા બધા ભક્તો આવે ને મને કે છૂટકો જ થતું નથી। हाँ, મને બી હસવું આવે સાંભળીને, છૂટકો જ થતું નથી। મેં કીધું હું છોડાવું? કેવી રીતે? કે તું મારા પાસે આવી જા, સંન્યાસ લઈ લે, બધું છૂટી જશે અને આનંદ લાગી જશે, આનંદરૂપ થઈ જશે। પણ કોઈ આવવા મારો દીકરો તૈયાર થતો જ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो संतापत्रय हैं उन्हीं का विस्तार है पूरे जगत में। जो आग लगी हुई है, उस आग से बचना चाहते हो
तो संतों के पास आओ, सद्गुरु के पास आओ और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो, तो निश्चित रूप से इस आग से बच जाओगे, दुख से छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन गुलाब में बैठा हुआ ऐसे ही सोच रहा था, 18 अक्षोहिणी सेना, 7 अक्षोहिणी पांडवों के पास थी और 11 कौरवों के पास में थी। 18 अक्षोहिणी सेना, सब मरने मारने के लिए खड़े हैं एक दूसरे को, और युद्ध होगा तो मरेंगे ही ना, सब मारने को खड़े हैं। लेकिन मेरे कन्हई को देखो, वो मुस्कुराता हुआ गीता का उपदेश कर रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत और बहुत बड़ा संदेश है मित्रों, कि इतना बड़ा संसार वहां खड़ा है और वो भी मृत्यु के मुख में जाने के लिए खड़ा है। बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई भी वहां के ऊपर दिखाई दे रहा। तब कृष्ण को एक ही उपाय दिखाई देता है, श्रीमद् भगवत गीता। मतलब कितने भी दुख के कारण आ जाएं, कितनी ही मृत्यु तुम्हारे सामने निकट आ जाए, अगर तुमने गीता का स्वाध्याय किया है, अगर तुमने गीता को अपना आत्मसात किया है, पढ़ा है और उतारा है अपने जीवन में, तो ये दुख से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा तुम्हारा हो जाएगा। मतलब अध्यात्मवाद ही एक ऐसा है नारायण, जो आपको दुखों से छुटकारा दिलवा सकता है, अध्यात्मवाद। और ये अध्यात्मवाद आपकी थाती है। मजे की बात ये है, थाती यानी धन, आपका धन है, हम हिंदुओं का धन है, हम भारतीयों का धन है। लेकिन हम इतने मूर्ख हो गए हैं कि अपने इस धन को छोड़ के और दूसरे धनों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसीलिए अशांति और उद्वेग बढ़ रहा है। अगर इन सब से बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लो। ये अध्यात्म शास्त्र है, अध्यात्म दीप है। इसके लिए एक शब्द आएगा आगे जाके, अध्यात्म दीप है। ये अध्यात्म दीप है, इसके जलते ही इतना प्रकाश होगा कि अज्ञान का अंधकार और दुखों का अंधकार ये सब तुमसे दूर चले जाएंगे, सब तुमसे दूर चले जाएंगे। इसलिए मित्रों, हमें उस परमात्मा का आभार मानना चाहिए जो हमें स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप बना करके विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में निमित्त बना करके और संतापत्रय का विनाश करने में समर्थ बन करके रक्षण कर रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब बच्चों, आज पहला दिन था, टाइम बहुत हो गया था, आने में ही समय लग गया था। तुमको तो मैं और भी सुना सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा पूरी हो गई है। हम 11 से 1 तक का सोचे थे, 1:15 बज गया है। क्या करना है बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? पहला तुम्हारी इच्छा जानी लो ने। મને બોલવામાં વાંધો નથી, હું ધીરે ધીરે બોલી રહ્યો છું, એટલે કંઈ વાંધો આવતો નથી, શાંતિથી બોલીશ। पहले की भागवतों में तो विद्यानंद धनसुख ने સૌથી પહેલા લાગે। તો આજે આપણે અહીંયા જ વિરામ લઈએ મહાત્મ્યના મંગલાચરણ સાથે। આગળની કથા હું આવતીકાલે હું ઠીક 10:30 વાગે, તમે કહો 10:30 આવું કે 11 આવું? પહેલાં કહી દો। 11 પાક્કું આવી જશો તમે બધા? હા, જો નહીં તો પછી આ થાંભલાઓને થોડી હમલાવવાનું છે મારે। હા, 10:30 વાગે આવી જાજો। 1 વાગ્યા સુધી 2.5 કલાક તમને ખૂબ પ્રેમથી ભાગવત સંભળાવીશ। આજે અહીંયા જ વિરામ લઉં છું। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
शांति शांति शांति। कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली सरकार, नैया ले चल परली पार। पूरा नहीं गाएंगे आज, ऐसा कागज तुम्हारे को कल मिल जाएगा, फिर तुम भी हाथ में ले लेना, फिर साथ साथ में गाना। आज तो खाली वानगी बताड़ी छे, वानगी ये आपने। चलो अभी आप लोग आरती की। अच्छा आप मंगलारात्रिक्यं कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम्। हम व्यासपीठ